Okay. So we previously saw that how Simon Commission and the civil disobedience movement was being carried out. Okay. Now we'll study के उसके बाद क्या हुआ. Afterwards, round table conference happened. Okay, round table conference is a very famous conference जहाँ पे British government they used to invite Indian leaders ताकि Indian leaders वो अपना जो इंडिया का इशू है वो उसको प्रेजेंट कर सके. Okay, so there were in total 3 roundtable conferences. Okay, first roundtable conference कभी हुआ November 12, 1930 और last वाला हुआ January 1931. Okay, these conferences they used to be held at England. बहुत ही फेमस इंसिडेंट है कि एक बार महात्मा गांधी वहां पर ये पहन के चले गए थे, क्या बोलते हैं वो धोती और जो ये नॉर्मल कपड़ा है ना, महात्मा गांधी यूज्ड टू वेयर नॉर्मल स्वदेशी क्लोथ्स. ओके, एंड पीपल वर ट्राइंग टू मेक फन ऑफ हिम, but instead he showed that how by using Swadeshi clothes he is trying to help the movement in India, and hence he got a lot of respect in England also. Okay, so the Congress was really unhappy with the Simon Commission. Okay, so they boycotted the conference, but other political parties and interested groups were well represented. Okay, तो कांग्रेस नहीं गया था लेकिन दूसरे लोग गए थे. यहाँ पे तो एक पिक्चर भी दिया है, गांधी जी had gone to the second roundtable conference to present the Indian part in this thing. फिर गांधी Arvan Pact. Since the satyagraha could not be suppressed, the government through Tej Bahadur Sapro and Jayakar started negotiation with Gandhi. Okay, तो गवर्नमेंट की तरफ से तेज बहादुर सापरो और जायकर ये लोग आके गांधी जी से they were trying to negotiate, and this negotiation led to the Gandhi Arvind Pact. ठीक है, तो ब्रिटिश और गांधी जी के बीच में एक पैक्ट साइन हो गया था. उसमें क्या बताया गया था, पहला ऑल ऑर्डिनेंसेस एंड ऑल प्रोसिक्यूशन. ओके, तो जितने भी लोग के ऊपर केस चल रहा है, जितने भी इंडियन लीडर्स है प्रिजन के अंदर, जो प्रोटेस्ट में जितने लोग को पकड़ा गया था, सबका ये प्रोसिक्यूशन खत्म करने के लिए. ठीक है, release all political prisoners except those guilty of violence. Okay, and if anyone has killed anyone, then apart from that, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, okay, he didn't kill anyone, उन्होंने किसी को मारा नहीं, पॉलिटिकल रीजन की वजह से उनको अरेस्ट किया गया था, तो उनको भी रिलीज करने के लिए. परमिट पीसफुल पिकेटिंग ऑफ लिकर एंड फॉरेन क्लोथ शॉप्स. ओके, so this thing was allowed. What is the meaning of picketing? Just one second. यहाँ पे ओके, पिकेट का मतलब क्या होता है? एक्ट एज अ दिस थिंग, पिकेट आउटसाइड. जस्ट वन सेकंड. A person or group of people who stand outside a workplace or other venue as a protest or try to persuade others not to enter during a strike. Okay, yeah, so therefore foreign clothes के बाहर picketing was allowed. Okay, permit peaceful picketing मतलब people used to stand outside the shops and they used to protest. जितने लोग खरीदने जा रहे हैं उन लोग को बताते थे कि कैसे आप मत जाइए, अगर आप जाएंगे तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि the British power will become even more powerful. Okay, this is called as picketing. So outside the British liquor shops and outside the foreign cloth shops, पीसफुल पिकेटिंग वाज अलाउड. अच्छा, को जबरदस्ती किसी को दुकान में घुसने से मना नहीं कर सकता, लेकिन पीसफुली दे कैन रिक्वेस्ट कि आप इस दुकान से मत खरीदिए, आप स्वदेशी सामान ही खरीदिए. ओके, restore the confiscated property. Okay, permit the free collection of manufacture of salt by persons near the sea coast. So the Congress allowed these things. तो ये डिमांड था. ठीक है, ये सब डिमांड. और बाद में ब्रिटिश लोग का डिमांड क्या था? फर्स्ट टू सस्पेंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसको बंद कर दिया जाए. सेकंड सेशन ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सबको आके पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, एंड गांधी जी वेंट ओवर देयर आल्सो, एंड नॉट टू प्रेस फॉर इन्वेस्टिगेशन इनटू पुलिस एक्सेसेस. ओके, तो पुलिस ने जो लाठी चार्ज और जो मारपीट हुई थी उसमें और इन्वेस्टिगेशन नहीं करने का. ठीक है, क्योंकि अगर उसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो ये मालूम पड़ेगा कि पुलिस ने कितने जगह पे कितने बेगुनाह लोग को मारा, तो इससे और इंडियन लोगों को गुस्सा आ सकता है और इससे और क्या बोलते हैं अपना प्रोटेस्ट जो है और आगे जा सकता है. ओके, a second roundtable conference, it was attended by Gandhiji as a sole representative of the Congress. Okay, he went alone as a representative of Congress. Okay, and the conference was soon deadlocked on the minority issues with separate electorate is being demanded now not only by Muslims but also by the depressed classes. तो सब लोग ने अपना अपना अलग अलग डिमांड रखने लग गए थे, तो उसकी वजह से इंडिया could not be represented unitedly, and hence the second conference was also failure. उसके बाद third conference हुआ. It was attended by 46 delegates only. The Indian National Congress refused to attend the conference. Dr. Bhimrao Ambedkar, who attended the conference, demanded separate electorate for the depressed classes. Okay, Bhimrao Ambedkar मतलब Dr. Baba Saheb Ambedkar. He himself was from a lower category. क्या बोलते, lower caste, sorry, lower category बोलना गलत रहेगा.
फ्रॉम ओबीसी कास्ट, और उन्होंने हमेशा अपने बचपन से ही ओबीसी कास्ट के डेवलपमेंट के लिए अपने उन लोग के लिए काम किया. So Bhimrao Ambedkar, being from depressed class, being from a backward class, he demanded that depressed class should be given a separate electorate. उनका एक अलग minister खुद का एक होना चाहिए, उनका election अलग से होना चाहिए. Okay, and also the Prime Minister of Britain, Ramsay MacDonald, वो time पे जो Prime Minister था, announced an award known as the Communal Award. Okay, this was very communal award, मतलब एक गलत इंटेंशन से दिया गया था कि to give award to Muslims and Hindu candidates. This award provided separate representation to the Muslims, Buddhists, Sikh, ये वो. ठीक है, तो यहाँ पे वापस डिवीजन करना और स्टार्ट हो गया. महात्मा गांधी strongly opposed this award, said it would disintegrate Indian. Okay, आप इंडियन के हिसाब से आप अवार्ड दीजिए, आप मुस्लिम हिंदू के हिसाब से क्यों अवार्ड दे रहे हैं. तो ये महात्मा गांधी ने अपोज किया था. On 25th September 1932, the agreement known as the Pune Pact was signed between Dr. Bhimrao Ambedkar and the Congress, and the agreement provided that certain rights will be given to the backward classes. Okay. Just one second. अच्छा, ये जो पेज है वो क्लियर नहीं आया है. Let me just try to do this thing. अभी हाँ नहीं, ये पेज क्लियर नहीं आया है. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इम्पैक्ट, इसके ऊपर का पार्ट भी नहीं है. अच्छा ठीक है. Number 70. This is page number what? 79. Yes, this is page number 79. Okay, so let us focus on the next page. Then तुम 79 वापस भेज दो, मैं उसको explain करा दूंगा. ठीक है. Just one second. So यहाँ पे मेन टॉपिक क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर्स contribution. Okay, now Dr. Baba Saheb Ambedkar is very famous for one big thing. He made the constitution. जो अपना ड्राफ्टिंग कमिटी था जिन्होंने ये किए थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाए थे, he was the head of the drafting committee, and he was given this position by the Prime Minister Jawaharlal Nehru. Okay, and because of which most of the Indian constitution जो बनाया गया था वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ही बनाया. Okay, so he's the architect of the Indian Constitution. He's well-known economist, politician, social reformer, and an eminent jurist. Okay, jurist मतलब studied law. Okay, he tried to eradicate social evils like untouchability, lower caste के उन्होंने काम किया था. He was appointed India's first law minister in the cabinet of Jawaharlal Nehru. He was posthumously awarded Bharat Ratna. What is the meaning of posthumously? मरने के बाद. कुछ लोग को जीते जी भारत, अभी अगर सपोज फॉर एग्जांपल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम डाइड. ओके, अब उनके मरने के बाद अगर आज अगर गवर्नमेंट उनको अगर अवार्ड दे रही है भारत रत्न, तो दैट इज कॉल्ड एज पोस्टमसली. ओके, भीमराव अंबेडकर वाज बोर्न टू रांची, ये उनके मम्मी डैडी का नाम था, मध्य प्रदेश में. बाबा साहब हैड टू फेस डिस्क्रिमिनेशन ऑल्दो ही वाज एबल टू अटेंड स्कूल. ही एंड अदर चिल्ड्रन ड्यू टू देयर कास्ट वर सेग्रीगेटेड एंड गिवन लिटिल अटेंशन बाय द टीचर्स. तो वो बहुत गरीब फैमिली से थे. ठीक है, उन्होंने ये किए थे, मतलब स्ट्रीट लाइट के अंदर बैठ के पढ़े. उनकी उनकी बहुत सारे स्टोरीज फेमस है. ओके, ही उनको वो जिस जगह पे पढ़ते थे वो कारखाने वहाँ पे पढ़ते थे, तो बिकॉज ऑफ विच ही had a very great concentration power. He used to work in all this laboring factory वगैरह and everything. And in 1908 he entered the Elphinstone College. Elphinstone College पता है कहाँ पर? कोलाबा में. अगर कोलाबा जाते टाइम वहाँ पर पता है, that is a Prince of Wales Museum. उसके opposite में बहुत बड़ी बिल्डिंग है, that is Elphinstone College. So he used to study over there. Okay. Okay, I got the page. Fine, I'll upload it. And it was under the Bombay University, and he was first from his community. In 1912, he obtained BA degree in economics and political science from Bombay University. And उसके बाद वो यूनाइटेड स्टेट्स चले गए थे by गायकवाड़, रूलर ऑफ बड़ौदा. तो स्कॉलरशिप मिला गया था. ठीक है, जो गायकवाड़ बड़ौदा का जो किंग था, he saw that बाबा साहब अम्बेडकर is very talented, so he paid all the money for बाबा साहब अम्बेडकर to go to America and study further. ठीक है, तो उनको बचपन से ही टैलेंटेड जो है वो उनको दिखाई दे दिया गया था कि ही बिकेम वेरी फेमस. इन जून 1915, मेजरिंग इन इकोनॉमिक्स, ही रिसीव्ड हिज पीएचडी. ओके, at London School of Economics. He took master's degree. So he studied in America, studied in London. He passed British bar as a barrister. So he was highly educated. While practicing law in the Bombay High Court, he tried to uplift the Dalit in order to educate them. ठीक है, तो उन्होंने बहिष्कृत हरिकर्म सभा उन्होंने बनाया था टू फॉर एजुकेशन एंड सोशल इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट. ठीक है, दलित्स के लिए भी उन्होंने अलग अलग बुक पब्लिश किया था. बुक का नाम क्या है? मूक नायक, बहिष्कृत भारत, इक्वालिटी जनता,
सो दिस वाज बेसिकली टू प्रेजेंट के लोअर कास्ट के जो लोग हैं उन लोगों को कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. And then afterwards he became the law minister and chairman of the constitution drafting committee set up by the assembly to write India's new constitution. Okay, so he emphasized on the need to establish harmonious relationship. तो उन्होंने जो अपने इंडिया में जो ये दिया हुआ ना प्लेज में, इंडिया इज अ सॉवरेन फेडरल सेकुलर देन लिबरल कंट्री, तो दिस एवरीथिंग डेफिनेशन वाज मेजरली गिवन बाय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर. उनकी वजह से आज हमारी कंट्री ये डेमोक्रेटिक और फेडरल सिस्टम को बिलीव करती है. अगर वो टाइम पे कुछ अलग सिस्टम बनाते तो फिर आज हमारा रूल ही कुछ अलग होता. Okay. On October 14, 1956, Baba Saheb organized a public ceremony to convert around 5 lakh of his supporters to Buddhism. तो एक साथ 5 लाख लोगों ने जो लोअर कास्ट लोग थे, लोअर कास्ट लोग जनरली दे आर फ्रॉम द हिंदू दिस थिंग रिलीजन, लेकिन हिंदू रिलीजन में उनको उनका राइट नहीं मिला. हिंदू रिलीजन में उनको लोअर कास्ट शूद्र वैश्य ऐसा बोल के उनको हमेशा ही अनटचेबिलिटी ये किया गया. ये महात्मा गांधी ने भी उनको हरिजन का स्टेटस दिया ताकि उनको सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जाए. ही कॉल्ड देम हरिजन, बट फिर भी इससे ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो पाया. सो बाबा साहब अम्बेडकर इन 14 अक्टूबर ही कन्वर्टेड 5 लाख पीपल इनटू बुद्धिज्म. बुद्धिज्म में कोई भी अपर कास्ट लोअर कास्ट नहीं है. सो देयरफॉर कास्ट का पूरा प्रॉब्लम इज सॉल्व. ओके, जैसे इस्लाम में भी अपर कास्ट लोअर कास्ट नहीं है. ओके, सो कास्ट सिस्टम बहुत ही कम इसमें होता है. वन ऑफ द फ्यू रिलीजन जहाँ पे कास्ट सिस्टम है वहाँ पे हिंदुइज्म. So to oppose this caste system, he converted every one of his followers to Buddhist. Baba Saheb passed away in December 6, 1956. Okay, he made immense contribution in shaping modern India. He led millions of oppressed to a self-respected dignity and responsibility. Okay, fine. So there is one page in between. Just let me open. Yeah, so this one page was left. Let us also finish that off. Okay, so अपना chapter हो जाएगा complete. So the renewal of civil disobedience movement. Obviously, the conferences, okay, the roundtable conferences, they were not very successful. Okay, and the communal award and everything. तो ये सब की वजह से the British Prime Minister Ramsay MacDonald, he was even trying to create communal tension in India. So even the roundtable conference failed to be unsuccessful, and therefore the civil disobedience movement had to be renewed. उसको वापस से स्टार्ट करना पड़ा क्योंकि जो प्रॉब्लम था, जो इशू था, वो तो सॉल्व हुआ नहीं. ठीक है, तो आफ्टर द फेलियर्स ऑफ द टॉक्स ऑफ द सेकंड सेशन ऑफ राउंड टेबल, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s. ग्रेट डिप्रेशन पता है क्या हुआ था? आई शो यू ग्रेट डिप्रेशन. 1929 में अमेरिका का नहीं, सॉरी, यूरोप का जो पूरा इकोनॉमी था, ठीक है, वो पूरा इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया था. ओके, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930. आई शो यू इमेजेस ऑफ दैट. बिकॉज ऑफ दिस एंटायर इकोनॉमिक कोलैप्स, ऐसा माना जाता है कि हर कुछ सालों के बाद ऐसा कोलैप्स आता है. ठीक है, यू सी दिस वांटेड जॉब्स. ओके, पीपल वर फेल्ट जॉबलेस. ओके, फिर यहाँ पर बहुत सारी जगह पे खाने पीने की कमी हो गई थी. दिस इज यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, वहाँ पे ये सब चल रहा था. ओके, ये स्टॉक मार्केट का जो इमेज है वो ऐसा है. दिस वाज द इमेज ऑफ द स्टॉक मार्केट. इफ यू सी, इट वाज कंटिन्यूअसली, इट वाज गोइंग डाउन. ऑल द शेयर्स इट केम डाउन. ये देखो 1928 से चल रहा था, 1929 में थोड़ा ऊपर गया, फिर 32 तक का इट वाज कंटिन्यूअसली गोइंग डाउन. स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, तो उसके लिए सबका जो पैसा है वो सबका पैसा डूब गया, सब गरीब हो गए. ओके, एंड अ लॉट ऑफ पीपल सफर्ड फ्रॉम दैट. So this collapse of the economy in America and in Europe in 1930s, this time is called as the Great Depression, and it was very problematic for Europe. ठीक है, ऐसा सेम वापस अमेरिका में 2008 में हुआ था. सेम थिंग अगेन, एक बड़ा डिप्रेशन आया था. सो ऑल्सो द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द 1930s in the world had hit the farmers in India. Okay, because there was no demand, everyone was affected by it. So Gandhiji sought an interview with Viceroy Wellington. The interview was refused. Interview मतलब he wanted to talk with the Viceroy ताकि Viceroy से जाके इंडियंस लोग का प्रॉब्लम बता सके कि इंडियंस को कितना प्रॉब्लम हो रहा है इस ग्रेट डिप्रेशन की वजह से. Great Depression majorly happened in Europe, but India should not be affected by it. But still, because India is a colony of Europe, तो पूरा पैसा इंडिया को देना पड़ा ताकि इंग्लैंड की इकोनॉमी को संभाला जा सके. Okay. So hence, because this was refused, then कांग्रेस ने एक ऑर्डिनेंस पास किया कि वापस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया जाए. गांधी जी को जब गांधी आयरविन पैक्ट में रिलीज किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी रिलीज किया गया था, लेकिन उनको वापस अरेस्ट कर दिया गया. एंड द गवर्नमेंट रिसोर्टेड टू रिप्रेशन, इशूड ऑर्डिनेंस एंड अज्यूम्ड स्पेशल पावर्स. द कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड इलीगल. कांग्रेस लीडर्स वर अरेस्टेड. अगेन द सेम थिंग केम इनटू एक्जिस्टेंस. ओके, सो gradually the civil disobedience movement lost its force. Okay, क्योंकि सब लीडर्स अरेस्टेड थे और धीरे धीरे करके सारे मासेस को इतना ज़्यादा सपोर्ट कोई कर नहीं पाया. सो कांग्रेस कॉल्ड इट ऑफ इन 1934, and Gandhiji also withdraw himself
फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स फॉर अ ईयर। 1 साल तक का उन्होंने फिर पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया, बिकॉज ही फेल्ट दैट दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का भी फेलियर होना ही फेल्ट के उनकी गलती है। Okay, the impact of civil disobedience movement क्या हुआ? First, the movement caused a tide of patriotic fervor in the country. सारे हिंदू मुस्लिम सब अलग होके they were first of all they were thinking पूर्ण स्वराज का डिमांड आया. They were thinking about the country India. They said that we are all working together. Okay, widen the base of freedom struggle. A larger number of social groups like merchants, shopkeepers, peasants, everyone become involved in the freedom struggle. ठीक है, पीपल अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस। ओके, लोगों को पता चला कि कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में नॉन वायलेंस की वजह से इट वाज कॉल्ड ऑफ, बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में they were doing it peacefully, so people understood that non-violence is very powerful. Okay, and movement also popularized new methods of propaganda. Prabhat ferries, in which hundreds of men and women went around singing patriotic song in early morning, became popular in towns and villages. Okay, so this sentiment of patriotism, okay, ये जो प्रोपोगंडा होता है, प्रोपोगंडा मतलब क्या होता है कि हम लोग को एक आइडिया को स्प्रेड करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोपोगंडा। हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक प्रोपोगंडा होता है, वो लोग अपना आइडिया स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस का एक प्रोपोगंडा है, बीजेपी का एक प्रोपोगंडा है, ठीक है। सो इन द वेरी सेम मैनर जो पेट्रियोटिक प्रोपोगंडा वो टाइम पे था, इट वाज स्प्रेड। सब लोग गाना गाते थे, सब लोग देशभक्ति के बारे में बात करते थे। अब 10-15 लोग अगर देशभक्ति का गाना गा रहे हैं तो किसी और को भी देख के लगेगा कि हाँ मुझे भी देशभक्ति का गाना गाने का है, तो वो भी इंडिया के बारे में गाना गाएगा। ओके, द मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ बिरला एंड द हरिजन सेवक संघ चेंज द सोशल कंडीशन। ओके, डिप्रेस क्लासेस, लोअर कास्ट को पहली बार टेम्पल और वेल्स में एक्सेस दिया गया था, उन लोग को भी फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व किया गया था, तो सोशली इट वाज आल्सो अ वेरी गुड थिंग। Women out of their homes participate in the politics. Okay, women also participated. The government was convinced that basic constitutional reforms were necessary. मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया था, यहाँ पर ये मानना गया गवर्नमेंट से कि वापस इंडिया का लॉ पूरा का पूरा वापस बनाना पड़ेगा। Okay, so to give Indians more right, because initially before 1935 everything was for Britishers only. अभी इंडियंस लोग के लिए नया लॉ बनाना पड़ेगा, और ये एक्ट कभी पास हुआ था 1935, and the movement revived the will to fight the elections. In 1937 the Congress achieved positive results in the elections to the Central Legislative Assembly and Provincial Legislative Assembly. Central Legislative Assembly मतलब उन लोगों का सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब स्टेट गवर्नमेंट। अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कैसे लोकसभा होता है वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगा, और कैसे हमारा विधान परिषद रहता है, विधानसभा रहता है स्टेट्स का, वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगा। सो कांग्रेस आल्सो थॉट कि हमें वापस इलेक्शन लड़ना है, बिकॉज पहले देखो सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कॉपरेशन में उन लोग ने बोले थे कि जितने भी लेजिस्लेटिव मेंबर में जो लोग मिनिस्टर्स थे, जो भी मेंबर्स थे, सबको रिजाइन करने के लिए, सो दे लेफ्ट, बट आफ्टरवर्ड्स they again rejoined in 1937 and many कांग्रेस के कैंडिडेट्स वन सीट्स थ्रू आउट इंडिया। तो कांग्रेस आज़ादी के पहले से ही इंडिया में इलेक्शन जीतते हुए आ रही थी, ठीक है, फाइन। So I finished the lecture over here. I'll upload this video in YouTube in just 10 minutes. Okay. If you have any doubt, you can send it to me on the group WhatsApp, or you can call me up. Okay. Tomorrow we'll be starting with a new chapter of history.